Please kindly reply to my answers, to my questions rather. Ma'am, sometimes I enjoy, but sometimes I feel like very boring. Okay. Yes, it's really It's true. really suffocating. Yes, it's a this time is a mixture of good and bad. Don't know what is good and what is good to us and what is bad to us. Nobody knows that. But we can't control the certain situations are not under our control. We have to manage ourselves. That is called adjustment, and it is key to make ourselves more stronger. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग वेरी मच। आप लोग कितने सीरियस होते हो ना, तो मुझे भी बहुत सीरियस होना पड़ता है आप लोगों के लिए। बहुत सीरियसली सुनते हो आप हर चीज, स्पेशली 11th एंड 12th के लिए ये समय बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल अराउंड यू आर एक्सपीरियंसिंग। ये क्रूशियल होता है एंड यू हैव टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग योरसेल्फ, रिगार्डिंग योर करियर। एंड अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एवरीथिंग एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ भी कुछ भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा, सब कुछ एकदम पिछले 3 महीनों से एक जगह पे रुक गया है। बट एक चीज चल रही है, वो है टाइम, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एंड वी हैव टू टेक दैट टाइम इनटू आवर कंसंट्रेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस और नो? यू कैन कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। आप बहुत समझदार बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग शोर करोगे, because counseling is a kind of session that where interaction is very much important. Otherwise I feel that I'm talking with the walls only. Okay, yes or no? Okay, let's start our session. Just what do you want me to discuss today? अपने आप से कुछ बता दो जो मन करे आपका, because today I want to have an interaction session with you. I want to know how you are, how you have used these 3 months. What have you experienced? What have you gone through? What's running into your mind? If you don't want to say, I know you are very conscious, you know recording is going on, you can type. I will read. In my private chat, you can type, and without disclosing the name, I just give the answer of your questions if you want to. Okay? Okay, girls? Okay, ma'am. Yes or no? There are 26 girls and I am not hearing even a single voice. आपको जबरदस्ती क्लास में लाया गया है क्या कि आप अपने मन से आए हैं? पहला सवाल। Yes or no? Tell me, dear children. बताइए. What do you tell me? Any one of you can tell me how do you utilize your day? क्या routine है, day routine आपकी? Any one of you. I will not. Okay. I will not say a single name, but if you want to share with me, you are most welcome. You can share whatever is there in your mind, whatever is there that you want to share. And मुझे ये बताओ कि कोई भी एक बता दो, how do you spend your day? कैसे आपका क्या routine रहता है दिन के लिए? Anyone? Ma'am, there is no routine. All our life will just become orderless. Everything is going and going just simply. Okay. But you know, dear, what I feel, we all are having a habit because it's our culture, it's Indian culture कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है without authorities we can't work. फैमिली से ही शुरू होता है ये सब कुछ, अथॉरिटीज के बिना कुछ भी हमें करने का मन नहीं करता। जब तक बचपन में जब तक मदर फादर इंस्ट्रक्ट नहीं करते तो हम प्लेट से बिस्किट भी नहीं उठाएंगे अगर मेहमान आए होंगे। फिर मदर फादर हमें ही मेहमानों की तरह बोलते हैं, बेटा ले लो एक, तो हम लेते हैं। तो वो हमारी एक हैबिट बन जाती है
फिर धीरे धीरे स्कूल जाते हैं तो लगता है नाउ आई हैव टू बी ऑन टाइम, आई हैव टू वेक अप ऑन टाइम बिकॉज स्कूल टाइमिंग इज देयर, वी हैव टू go according to the norms and regulations of our school, we have to go to the social environment that surrounds around us. तो ये सब कुछ हमें जाने अनजाने में हमारे लिए एक अथॉरिटी बन जाती है। ओके, तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर, और हमें वो क्या होता है कि व्हेन यू आर again and again given the same situation and again you are experiencing the same environment, automatically you become the part of that environment. उस environment का हम लोग एक part बन जाते हैं और हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम उस environment का part हैं। और हम आज की डेट में हम उस environment के part हैं जहाँ पे हम authorities के बिना अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकते। Being a teacher, I am also experiencing this. जब तक सिस्टर हमें 2-3 बार नहीं इंस्ट्रक्ट करेगी यू हैव टू डू दिस, फिर हम रात को बैठेंगे वी हैव टू मेक दिस प्लान एंड वी हैव टू सेंड इट। क्यों? क्योंकि हम लोगों की हैबिट है ये, और ये हमने कब अडॉप्ट की हमें खुद भी पता नहीं है। ये कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया हमें खुद भी पता नहीं है। बट there is something different, the people are also there in this world that need any authority. हमें उन्हें कोई ऐसे इंसान की जरूरत नहीं होती कि वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा बेटा 6 बजे उठना कब है, बेटा इतने बजे आपको, आज 1:30 बजे हमने खाना खाना है तो चलो खाना खाओ, 2 बजे आपने ये चीज करनी है तो ये करो, 3 o'clock आपको ट्यूशन जाना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कोई डायरेक्शन देने वाला है ही नहीं, स्पेशली इन अब्रॉड। After 14 they are able to understand what's good and what's bad for them, and they have to earn their livings, and they are groomed in such a way. They don't have any instructions to be followed by, given to by anyone to be followed. They make their own rules, they make their own instructions and follow them. और आज की डेट वही डिमांड कर रही है। आज की डेट आपको मेस्ड अप क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर एक पल के लिए भी एक्सपीरियंस करोगे बच्चे, तो आपको ऐसा लगेगा, अगर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे, देखो सब कुछ आपके हाथ में है इस टाइम पे। अगर पॉजिटिवली सोचोगे, सब कुछ आपके हाथ में है, आपका समय आपके हाथ में है, आपको तो कैसे यूज करना है वो आपके हाथ में है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बोल रहा है बाहर गार्ड स्कूल की वैन आई है, 3 बजे ट्यूशन के पास इस मैथ्स का टेस्ट है, 4 बजे इंग्लिश का टेस्ट है, शाम को आके असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, फिर रात को बैठ के ये वाला स्कूल का काम करना है। कुछ भी नहीं है। No one is there to instruct you. I am what is my intention is that कि आपको जो मिला है उसे खूबसूरती से इस्तेमाल करो। उसे जो समय मिला है उसे यूज करो और शुरुआत खुद से करो। आज मैंने कोई पढ़ाई की बात नहीं करनी। बहुत सी बातें हैं और बहुत से लोग हैं आपको पढ़ाई के बारे में समझाने वाले। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है आज। मुझे आपके बारे में बात करनी है। मुझे आपको आपसे मिलाने की बात करनी है। शायद मैं थोड़ी फिलोसफिकल साउंड कर रही हूँ, बट दिस इज रियली ट्रू। दिस इज अ नीड ऑफ अ टाइम। किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो भी वो रोता है, और जिसके पास सब कुछ होता है तो भी वो रोता है। तो गलती किसकी है? कुछ ना होने की है, सब कुछ होने की? किसी की कोई गलती नहीं है। नजरिया इंसान को बदल देता है, और ये नजरिया ही है जो आपको खुद से मिलाता है और आपको इंटरडिपेंडेंट बनाता है और आपको इंडिपेंडेंट भी बनाता है। अभी टाइम है कि आपको वो दौर मिला गया है कि यू आर नाउ इंडिपेंडेंट। You can utilize your time by your own deeds. Whatever you like, you can do it. I know there are external pressure, but most of time you are having your time in your hand. No one is there to interrupt you. But तो भी हम बोर हैं, तो भी हम गुस्से में हैं। क्यों? आज स्कूल की वैन नहीं आई, हमारा मूड खराब हो गया। आज पापा ने जल्दी नहीं उठाया क्योंकि सुबह जाना नहीं था, शाम को ट्यूशन आनी नहीं थी। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो हम काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? There is something called self-conscious. जब तक वो इंसान का जागता नहीं है ना, तो तब तक कुछ नहीं हो पाता। शायद आप नरेंद्र मोदी को ना आके बोल दे कि कल कॉन्फ्रेंस है और टाइम पे पहुंचना।
वो तो हम लोग उस चीज को बॉन्डेडली लेते हैं, तो उसको बॉन्ड करके उसकी चीज के ऊपर काम करते हैं। सोचो अगर उसी चीज को इंजॉयबल वे में लिया जाए तो हम उस टाइम को बहुत फ्रूटफुली स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी टाइम स्पेंड करने की या टाइम को यूटिलाइज करने की बात आती है, तो सबसे पहले आपने एक चीज रखनी है अपने पास, वो है मी एंड माई सेल्फ। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आप खुद को समय नहीं दोगे, आप किसी और चीज को समय नहीं दे पाओगे। सुबह उठते हो, जितने बजे भी उठते हो, उससे 10 मिनट्स 15 मिनट्स पहले अर्ली उठने की कोशिश करो। आई नो सम ऑफ यू जस्ट गो टू द वॉशरूम, बट आपकी आईज पूरी बंद होती हैं, बिकॉज दिस इज अ एज लाइक दिस ओनली। यू आर नॉट रॉन्ग, इट्स ओके। इट दिस दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज क्योंकि ये जो है, ये इस एज में बहुत कॉमन चीज है। इट इज एक्सेप्टेबल। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट एक्सेप्ट इट। It's acceptable. It's okay. You feel lousy. You feel sleepy. You love to see dreams by even your eyes are open, but you are in a dreaming world. ये एक आपकी अलग दुनिया है, बट इसके लिए भी समय चाहिए। इस दुनिया से आपको जुदा नहीं किया जा सकता। मैं इस बात को समझती हूँ। ये दुनिया आपसे नहीं जुदा है, ना आप इसको अपने आप से जुदा कर सकते हो। Because every stage of your life gives you some experience, and you are gaining the experience of teenage. It's okay. बट ऐसा ना होना, मतलब मिंगल अप नहीं करना है। बस मैं ये क्या चाहती हूँ, सबसे पहले अपने आप को टाइम दो। सुबह उठ के अपने आप को टाइम दो। जिसको योगा पसंद है, थोड़ी देर योगा कर लो। जिसको लगता है कि मैं घर में बैठ बैठ के खा खा के मोटी हो रही हूँ मेरी तरह, तो एक्सरसाइज कर लो। ओके, मेडिटेट फॉर सम टाइम। थिंक ऑफ योरसेल्फ फॉर सम टाइम। मी एंड माय ड्रीम वर्ल्ड, थिंक फॉर इट। उसके बाद पढ़ो। whenever you want to study, if you are most welcome, you can study. No issues regarding that. But ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि you are sitting in your studies and उसके बाद you are dreaming of something else. तो वो तो ऐसा हुआ कि you are ditching yourself. ठीक है, सुबह उठो पहले, उसके बाद अपने belongings को टाइम देना है। पहले खुद को, your study, your family, they are part of your life. But what is most important is your own life. That is the most important thing in this world. You are blessed by a beautiful life given by the God. Experience that. और ये सच बोल रही हूँ। एक बार कोशिश करो इस चीज को। एक बार इन चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। देखो कितनी खूबसूरत लाइफ लगेगी आपको अपनी। क्योंकि जब आप एक रूटीन फॉलो करते हो ना, whenever you follow some routine in your life, automatically आपको ऐसा लगता है you are self disciplined, you are self confident, you are self dependent, you can do anything, you can उसमें आपने कुछ नहीं किया होता है, सिर्फ आपने उसमें इतना एफर्ट डाला होता है कि आपने टाइमिंग का प्रॉपर यूज किया होता है। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। व्हाई वी आर हैप्पी टुडे, why I am excited today, why I am feeling so calm today? Because you have utilized the day in a purposeful way. You have spent a day with a person whom you love to spend with. इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ समय खुद को भी दो। जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों को प्यार नहीं दे पाओगे। दूसरों से आप कामली बात नहीं कर पाओगे। दूसरों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद इतने उलझ जाते हो। कभी आप ऐसा करते हो कि आप अपने माइंड में माइंड सेट कर लेते हो, सुबह उठ के मैंने ये करना है, इस लेसन को रिवाइज करना है, उसको करना है, उसको करना है। इतने लंबे चौड़े एक ही दिन के टारगेट्स आपके हो जाते हैं कि एंड ऑफ द डे इफ यू विल नॉट बी एबल टू acquire that, if you will not be able to conquer that targets, you feel ki no, this is worthless, I will not be able to do this.
और ऐसा ही आपके एक्सरसाइजेस के साथ भी होता है। बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो भी मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी रूटीन बनाई होगी, एक मंडे वाला टाइम टेबल जो कभी मंडे आता नहीं है उसके बाद टाइम टेबल बनाने के बाद, तो उन्होंने वो रूटीन बनाई होगी कि आई वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, वी विल गो थ्रू दिस, वी विल गो थ्रू दैट। बट कभी-कभी क्या होता है कि 2-3 डेज जो रूटीन है वो रेगुलर चलती है और उसके बाद उस रूटीन में ब्रेक आ जाता है और उसके बाद हम ये सोचने लगते हैं कि भाई ये चीज़ तो हमसे अब होगी ही नहीं। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स ओके। अगर 1-2 दिन के लिए ब्रेक आ गया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वेक अप 15 मिनट्स अर्लियर, गिव 15 मिनट्स टू योरसेल्फ, मेडिटेट, वॉक, जॉग, इवन इफ यू वांट टू डांस, म्यूजिक लगा के एक्सरसाइज मोड पे या कुछ भी है, एरोबिक्स हुआ, जुम्बा, यू नो, एप्पल ऑफ थिंग्स, आई नो दैट, तो आप कर सकते हो। दिस गिव यू सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपको कुछ लगेगा कि थोड़ी देर आपने अपने आप को दिए, मेडिटेट ही कर लिए, योगा कर लिया, जॉगिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, कुछ भी कर लिया सुबह उठ के। उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट प्लान सोचोगे और अपने टारगेट्स, जब भी कुछ आप स्टार्ट करो, अपने टारगेट्स बहुत कम रखा करो दिन के, ताकि आप उसे अचीव कर पाओ। और एक लिस्ट बना लो, डूज एंड डोंट की। आज इस दिन में मैंने ये चीजें करनी है, बहुत बचकानी है लेकिन बहुत काम आती हैं ये चीजें, because we really need positive environment, positive feedback from each and everything around us, even from ourselves also. We need positive feedback, positive environment, positive reflections, सब कुछ हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज नीड ऑफ अ टाइम, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट ही ऐसा है। और जब तक आप और उसकी जो वो आप लिस्ट बनाओगे, जब आप उस जो काम आपने कर लिए होंगे, स्टार्ट विद मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक, कुछ भी, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये चीज करनी है, थर्ड नंबर पे ये वाले सब्जेक्ट का ये पोर्शन कंप्लीट करना है, लिख के रहने दो। और स्टार्टिंग में टारगेट्स बहुत कम बनाओ, बहुत कम, एंड टिक इट। एक काम हो गया, टिक दैट वर्क, that is the biggest motivator in your hand. I promise you will get more motivation from it. ये बहुत hypothetical चीजें हैं, but when you practically implement it in your life really will really see a change in your life. You will really see a change in your routine. You will really find that something different is going in my life. और किसी भी चीज को, किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए it takes 30 days only. Then it becomes your habit. जैसे हमें आज की डेट में पता ही नहीं है कि हमारी ये हैबिट कब बन गई कि हम अथॉरिटी के बिना काम ही नहीं कर सकते। वो हमारी आदत बन चुकी है अब। इस आदत से निकलो, आपको कितना खूबसूरत मौका भगवान ने दिया है, इतना अच्छा टाइम दिया है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सको अपने बिहाफ पे। हो सकता है गॉड भी यही सोचता हो, चलो देखते हैं, आज ये बंदे बोल रहे हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं दे रहा हूँ टाइम, करो यूज कैसे करना है, मैं देखता हूँ बैठ के। हो सकता है। और जिसने अच्छे से यूटिलाइज किया, शी इज देयर टू टच द स्टार्स। ये सच्चाई है लाइफ की। शायद ये बहुत फेरी टेल्स और कहानियां लगती हैं, बट जब इन छोटी छोटी चीजों को हम अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू करते हैं तो देयर आर 1000 पीपल, million are disappointed, but there are 1000 people who says life is beautiful. कुछ नहीं होता, उन्हें वक्त का सही टाइम पे सही इस्तेमाल किया होता है। और आपका जो वक्त है वो बहुत क्रूशल है। यही वक्त है दुनिया को कुछ करके दिखाने का, बट सबसे पहले खुद को कुछ करके दिखाने का। दुनिया तो बाद में आती है। खुद से खुद का प्रॉमिस करो, दुनिया से प्रॉमिस मत करो, क्योंकि दुनिया आपको चैलेंजेस का एक लिस्ट थमा देगी। और जब आप अपने चैलेंजेस खुद सेट करोगे ना, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद की बनाई हुई चीजें हैं। जो इंसान खुद अपने हाथों से कोई चीज बनाता है, उसे कभी भी तबाह नहीं करना चाहता। अभी आप बहुत छोटे हो इन चीजों के बारे में, लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर लोगे जो आपने अपने बिहाफ पे किया होगा। एक ट्रॉफी लाई होती है ना छोटी सी, हैंड राइटिंग कंपटीशन में भी, उसको भी 10 बार आप बोलते हो, सी दिस ट्रॉफी आई हैव गॉट इन क्लास 1 फॉर माय हैंड राइटिंग, बिकॉज इट्स योर्स। वो आपका है, वो आपका टारगेट था कि आपको सुंदर लिखना था, आपको प्राइज जीतना था।
जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ आपको मिला है, वो आपकी मेहनत के बल पे मिला है और उसे आप कभी खोना नहीं चाहते हो, उसे बार बार रिपीट करते हो। क्यों? बिकॉज दैट्स अ बिग मोटिवेटर फॉर यू. सेम इज अ केस with each and everything that is with you. The situation that you are experiencing these days, what is there in it? Nothing. सेम वही रूटीन है, सिर्फ स्कूल बंद हो गए हैं और ट्यूशंस नहीं जा रहे, बट बुक्स तो वही है ना, एग्जाम वही है, क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ है। स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं है, घर का बेडरूम है लंच करने के लिए, बट आप टाइम आपके हाथ में है। How you can use it, how can you can utilize it, it all depends upon you, and you are luckiest one to get the time in your hand. Make a time your friend, not your opponent कि आप उसके पीछे भागते फिरोगे। Okay, इतनी शांति क्यों है? Yes or no? I'm saying something, is I'm saying okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. anything है जो आपको लगा कि I am speaking the right and you are getting me? You are getting me? Yes, ma'am. बस यही सोच लो, मैं यही बोल रही हूँ आपको कि जो भी समय मिला है उस समय को बहुत फ्रूटफुली यूटिलाइज करो। आई हैव मेड अ पीपीटी फॉर यू, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। शायद आपने 1000 बार देखी भी होगी, यू आर मास्टर्स ऑफ पीपीटीज, आई नो दैट। बट अभी हमें इतना टाइम हो गया बात करते हुए, मुझे पता नहीं चला कि टाइम कब हो गया। सीरियसली व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली शेयर दैट पीपीटी विद यू। इफ क्योंकि बेटा मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं कि कुछ मैं सब नहीं बोलती, बिकॉज 100 नो वन इज लाइक, इवन और 5 फिंगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना कि जो इस टाइम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि what we can do, my god, nothing is there, no one is there, is only we are getting guidance from the school, only we are not able to do this, we are not able to do that, what to do, we boredom हो गया है और एकदम से हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। everything has changed, nothing is changed, everything is there। और आपको पता है, अगर मैं कल अनाउंसमेंट कर देती है गवर्नमेंट, नाउ फ्रॉम टुमारो स्कूल विल रीओपन एंड एवरीथिंग विल बी ओके एंड यू हैव टू गो टू स्कूल, तो आई थिंक इनिशियली नहीं आएंगे, लेकिन बाद में कुछ वन मंथ के बाद ही सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड उसके जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और जब हम स्कूल आना शुरू करेंगे, और हमें अभी स्कूल आए 15 डेज नहीं होंगे, एंड वी and at that time we will be the one who will say जो पिछले 3 months से ना, that was good, because human beings are never satisfied, so never think कि वक्त आएगा, वक्त आ चुका है, use it। वो 3 इडियट्स का आमिर खान का डायलॉग है ना, जहां बैठ जाओ वहां आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो, ये सच है। चाहे हम उस सिचुएशन में रहें कि जहां अथॉरिटीज के अंदर हम लोग चल रहे हैं, चाहे हम विदाउट अथॉरिटीज चलें, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, अगर हम कहीं कुछ बढ़ना चाहते हैं, समथिंग वी वांट टू गेन, वी हैव टू डू इट राइट नाउ। हमें कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस को आगे रख के अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहता। एक्चुअली क्या है कि जो सिचुएशंस रॉन्ग होती है ना, तो पर्सन ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ, तो वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है प्रैक्टिकली। और मैं यही कहूंगी, जो भी जस्ट आई एम स्टार्टिंग विद इट, कि सबसे पहले खुद को टाइम दो, ट्राई टू लव योरसेल्फ, देन यू आर एबल टू गिव लव टू अदर्स। इसको आप किसी भी सेंस में लेके जा सकते हो, because I know you have a broad perspective of visualizing the things, I know that, and this is a stage you can do that, but intention हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए इंसान की। अपने जो प्रायोरिटीज हैं उसे फर्स्ट प्लेस पे रखो, बाकी दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, एक करियर नहीं मिलता और एक पेरेंट्स नहीं मिलते। इसलिए यूज योर टाइम। आप ऐसा सोच लो जैसे अब्रॉड में बच्चे हैं, हम अब्रॉड में रह रहे हैं, एंड वी हैव टू बी सेल्फ independent and we have to do something for ourselves। ठीक है, now unmute yourself, if you have any questions you can ask me, most welcome, if you want to write it in the chat।
then only you're most welcome. Next time we will proceed ahead, and I really want a reply from your side. I'm feeling that I'm talking with the statues. Okay. Yes, ma'am. Okay. If you have any questions, any queries, dear, you can ask me. कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकता है. Thank you, ma'am. And tell me, anyone can share his or her good or bad experience what you have experienced in last 2 months. You can share it. It's okay. आप बात नहीं करोगे तो मुझे मजा कैसे आएगा बताओ. मैं ही बोलती जाऊंगी तो क्या अच्छा लगता है क्या? मैम ही बोलते जाए. आप इतनी बुजुर्ग मैम से इतनी मेहनत करवा रहे हो, बताओ. Tell me. Any queries? Any questions, dear? Yes. 11th, 12th. I have not seen because I'm not familiar with you. मुझे तो आपके चेहरे भी याद नहीं है. So you can say if you want to say something. If you want to question me, you can question. If you want to ask me something, most welcome. Kindly ask. Yes. अच्छा, tell me, do you like the session? ये तो बता सकते हो ना. Do you like the session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you gained something from it? Yes, ma'am. Have you gained something from it? Okay. And how many of you are going to follow it? How many of you are going to follow it? How many of you are going to give some time for to yourself in the morning and try to make yourself refresh? अपने आप को refresh करोगे और अपने mind को fresh करोगे for your day-to-day activities के लिए. And how many of you utilize your time properly? Very, very. Very nice. Okay. If you have any queries, any question, most welcome. You can ask me. Yes, class 12. If you want to say something to me, most welcome. Yes. Just unmute yourself and ask. आप टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो? Ask बेटा, जो भी कुछ मन में है, you can type and you can ask me. If you want to get a guidance for anything, if you want to share something with me, you are most welcome. You can share. You can share. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, actually, ma'am, I'm in my home still. My parents think that I'm studying, but ma'am, still Okay. I'm studying from morning, ma'am. I start at 10 o'clock and in evening Okay. 7. Ma'am, I just end Okay. up with my studies. But still, ma'am, when I check out that what I have studied, and when I check out, I get the result that I have done nothing throughout the day. Okay. And my parents have Actually, this complaint from me that I'm not studying. okay. Okay. And they don't have a complaint because you have self-evaluated yourself. देखो, अब हम अगर आपके पेरेंट्स को आपसे ये कंप्लेंट है कि you are not studying, but you are also evaluating yourself. Yes, I'm not studying. That means it's your No, ma'am. self-observation. Ma'am, in the means, ma'am, I am attending my every online class of tuition Okay. and of school. Okay. And ma'am, Okay. but when I just take out my test and just attend my test, when the result came that I'm not getting that much of what I Output. need, means Okay. yes, ma'am. Okay. Actually, होता क्या है बेटा कि first is that we are studying our classes online, and second reason is हमारा जो concentration span होता है ना, वो हमें बहुत cooperate करना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए. जब तक आप concentrate नहीं करोगे, obvious है कि आप उतना output नहीं दे पाते जितना आप receive करते हो, जितना आप input receive करते हो. ठीक है, you are saying that you are studying, you are working hard, but at the end of the day you realize that कि जितना मैंने हार्ड वर्क पुट किया है उतना मेरे को आउटकम नहीं आया. अब वो Yes, ma'am. एरियाज जो हैं, जो ड्रॉबैक्स के एरियाज हैं, जो आपको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं,
वो आपको सेल्फ ऑब्जर्व करने हैं कि क्या रीजंस हैं कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हर एक चीज अटेंड करने के बाद भी। इवेल्युएट योर स्टडी, इवेल्युएट योर सेल्फ। जब मैं पढ़ती हूँ कि उतना कंसंट्रेशन से पढ़ पाती हूँ जितना मुझे कंसंट्रेशन इस स्टेज पे चाहिए। जब मैं पढ़ती हूँ कि क्या मेरे को कोई सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन तो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट इन्वायरमेंट में तो नहीं है कि whom I am attached with and he or she is distracting me। ये सब रीजंस रहते हैं, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एक मेन जो पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग एट दिस स्टेज, वो आपकी बहुत हाई लेवल पे होती है। मैं ये नहीं कहती कि आपको अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा होगा क्या पढ़ा रहे होंगे, नहीं। बट व्हाट जो आपको धोखा देती है इस एज में, वो है आपकी कंसंट्रेशन, और जो आपको अट्रैक्ट करती है वो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन तीनों का बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ। इस स्टेज पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग। वो अपनी जगह पे स्टिल है, वो है वहां पे, अंडरस्टैंड आप कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड क्या नहीं करने देते? एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स होते हैं, और वो डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग और रिकॉल के बीच में एक शील्ड ले आते हैं। क्योंकि अब जब आप डिस्ट्रैक्शन, ये एक फिनोमिना है, जब आप कंसंट्रेशन से किसी चीज को पढ़ोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, इट विल रिमेन इन योर माइंड फॉर द लॉन्गर टाइम, बिकॉज वो एलटीएम पे चला जाता है। एलटीएम मींस लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये वहां चला जाता है, वहां से किसी चीज को आसानी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जो हम लोग डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ कंसंट्रेशन से किसी चीज को याद करते हैं, एंड वी आर देयर एंड वी से दैट वी हैव डन इट, बट वो एसटीएम में रहता है, और थोड़ी देर के बाद वो वहां से कहाँ खो जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। रिकॉल उसका बहुत कम होता है, और उसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, हमारे माइंड में नहीं रह पाता ये। तो इन चीजों को प्योरिटी दो। उसके बाद टारगेट्स पे जाना, कि आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट, इट्स वेरी हार्ड, आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट गॉड को पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। इट्स वेरी हार्ड एट दिस टाइम, आई नो दैट, बट अगर आपको गॉड को पाना है तो उसके लिए यू हैव टू लीव एवरीथिंग। एंड अगर आज आपने अपना टारगेट अचीव करना है जो आप बनना चाहती हैं, क्योंकि ये यही एक साल है आपके पास, आपने क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, तो उसके लिए आपको त्यागना पड़ेगा दीन दुनिया थोड़ी देर के लिए, फिर अडॉप्ट कर लेना। ये कुछ नहीं होता बेटा, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। जस्ट गिव मी वन आंसर, टेल मी व्हेन यू स्टडी how much time you spend sincerely। अगर एक घंटे के लिए आप बैठे हो कि आपको चलो जी 2 क्वेश्चंस लर्न करने हैं बायो के, तो आप सिंसियरली उस 1 आवर में कितने मिनट्स हैं जो आप कंसंट्रेशन से स्टडी करते हो? आई एम डैम श्योर ओनली हाफ एन आवर, क्योंकि हाफ एन आवर एक सेट 5 मिनट्स आप सेटलमेंट में लगाते हो, 10 मिनट्स आपके साथ नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्टिकुलरली डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। हर बच्चा ऐसे करता है। उसके बाद सेटलमेंट के बाद फिर बीच में कभी प्यास भी लग जाती है, कभी पानी पीना है, कभी कुछ करना है, और उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यस और नो, यस और नो, अब कोई आंसर नहीं है। यस और नो, डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, Yes, ma'am. बस वही रीजन है। देयर इज नथिंग। आई एम सेइंग ना बच्चे, अगर आप लाइफ को बहुत क्लियर पिक्चर देखना चाहते हो ना, क्लियर पिक्चर देखना चाहते हो, तो अपने आप को पानी की गिलास में देखो, आपको सब सच्चाई सामने आ जाएगी। आप हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। देयर इज नथिंग विद मी, एवरीथिंग इज विद यू डियर, एवरीथिंग इज विद यू। यू नो वेयर वी लैक, आई नो वेयर आई लैक, आई नो। लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकली लेके चलना पड़ता है, और हमारे हमारे अपनी नीड, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, किसी भी चीज को सिंसियरली करो ना, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई भी टारगेट हो, जब आप उसमें जी और जान डाल देते हैं ना, तो वो आपके हाथ से कभी नहीं छूटता। बी लॉयल टू योर वर्क, बी लॉयल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ये फिलोसफिकल बातें हैं, मैं जानती हूँ, बट इट वर्क्स अ लॉट,
इट वर्थ्स अ लॉट, क्योंकि मुझे पता है मेरे कार्बन लाइट्स बहुत स्ट्रांग है और वो गलत देख नहीं सकते, गलत रिएक्शन पे एक्शन लेते हैं इमीडिएट। अपनी गलत रिएक्शन पे एक्शन लेना भी जरूरी होता है। जब आपको लगा है कि मैं 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठी हूँ, तो 1 घंटे पढ़ने के लिए ही बैठना है। दैट्स इट। नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग एट ऑल। Two Excuse questions me, that are. Yes, dear. Yes, dear. Yes, dear. ma'am. I have a question, or kind of, I wanted to ask, like, how to get rid of laziness, because whenever I woke up in the morning, I always like, now I have to do it with full 100% energy level. Then Okay. I have something in the Okay. breakfast. Then I feel like, okay, I'll do that. Then then sleep. Okay, then I eventually see at the clock, it's like 5. Okay, I'll do it tomorrow. वो एक्चुअली क्या है ना, कि वही तो मैं कह रही हूँ ना, कि हम अपने टारगेट्स इतने ज्यादा रख देते हैं और इतने बड़े रख देते हैं कि वो हमें वो टारगेट्स को सोच सोच के ही लाउजीनेस आ जाती है कि नो आई एम नॉट एबल टू डू दिस, माय गॉड अब तो हो ही नहीं सकता, 11 बज चुके हैं, अब तो हो ही नहीं सकता, मैंने खाना खा लिया है। सबसे बड़ी Ma'am, बात, then टारगेट्स eventually I